Welcome back, all my dear and loving students. Hope for your good health and stay safe. Now, this is the second part of the recorded video of Grammar Standard 4th. Now, we are going to do the second part of chapter number 17, that is Subject Verb Agreement. In the first recorded video, you have understood the chapter very nicely and seen the animated video. So now let's start with the textual exercise which is given on page number 64 in your ACE grammar book of standard 4th. So let's get started students. सबको पेंसिल अपने हाथ में ले लेनी है. The first exercise which we are going to do is complete these sentences with is, am, are. So, with this simple present tense verb, we are going to fill in the blanks. Rajiv, singular subject is there. So, singular verb is will come. Raju is off to the market. The teacher, here also the singular subject है इसलिए singular verb is will come. The teacher is in the staff room. The teacher is in the staff room. Madhu and Ritu, here two persons are there. तो plural subject के साथ plural verb are will come. Madhu and Ritu are at Shimla. My parents means two persons are there. Plural subject इसलिए plural verb are. My parents are out of town. My parents are out of town. You, singular is there but you और I के साथ हमेशा plural verb लगता है. That's why you are late for class. You are late for class. Sixth one, the cows, plural subject है. That's why plural verb are will come. The cows are in the shed. The cows are in the shed. I के साथ am हमेशा लगता है. So it will come. I am a student of St. Joseph's School. I am a student of St. Joseph's School. Now the remaining three sentences. Shivangi, singular subject, that's why singular verb is my cousin. Shivangi is my cousin. The monkeys, plural subject है, that's why plural verb are. The monkeys are on a tree. Wasim, singular subject, that's why singular verb is. Wasim is happy to meet his brother. Wasim is happy to meet his brother. Now this was about simple present tense. Now how we'll use the in past tense कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं. The second exercise B, complete these sentences with was or were. तो I के साथ हमेशा singular है तो singular verb was will come. I was at home in the evening. The woman, MEN है means plural verb is there. Sorry, here worker man is there. The worker man, plural subject, that's why plural verb were. Tired after a long day. The workmen were tired after a long day. उर्वशी सिंगुलर सब्जेक्ट और पास्ट टेंस में है सो वॉज. उर्वशी वॉज बिजी एट वर्क. उर्वशी वॉज बिजी एट वर्क. द कैट सिंगुलर सब्जेक्ट इज देयर. सो वॉज में क्या लगता है पास्ट टेंस में वॉज.
The cat was behind the mouse. The cat was behind the mouse. The fruits, plural subject is there. That's why plural past tense were. The fruits were ripe for eating. The fruits were ripe for eating. The boy, singular subject is there. So past tense was will come. The boy was out with his father. The boy was out with his father. Now we'll move on to the next exercise, that is the flowers. It is in plural form, so plural verb of past tense were will come colorful. The flowers were colorful. The ball, singular subject, so verb past tense also will come singular. The ball was under the table. The ball was under the table. All these sentences we are writing in past tense, इसलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर पास्ट टेंस was आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल पास्ट टेंस were. The boys were in the canteen. The boys plural is there, इसलिए were in the canteen. The apple singular है subject, इसलिए was. The apple was sweet and ripe. Now the next exercise about has and have. Tick right the correct option to complete these sentences. आपको सिर्फ टिक राइट लगाना है किसके साथ have आएगा और किसके साथ has आएगा. We is plural, so have. We have a party next week. The shops, plural is there, so have verb will come, possessive verb. The shops have many customers. He, pronoun is singular, so he has a new car. And you do circle so that the answer is visible. आपको भी टेक्स्ट बुक में सर्कल ही करना है. Now here we have completed page number 64. All of you move on to page number 65. Here the sentence is Ishita, singular subject is there, so has. Ishita has a cat named Ginger. Ishita has a cat named Ginger. सौरभ, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी आएगा सिंगुलर, हैज़. सौरभ हैज़ माई बुक विथ हिम. सौरभ हैज़ माई बुक विथ हिम. माई ब्रदर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हैव. माई ब्रदर्स हैव अ रेड बॉल. माई brothers have a bright red ball. Then our next sentence is the team. तो पूरी टीम को हम कलेक्टिव नाउन की तरह वन काउंट करते हैं, इसलिए हैज़ आएगा. The team has many players. The team has many players. I, उसको हमेशा हम प्लूरल की तरह काउंट करते हैं, so it will come. उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है. एक्सेप्शनल केस है आई और यू, तो आई के साथ आएगा हैव. आई हैव सम पीनट्स इन माई बैग. आई हैव सम पीनट्स इन माई बैग. वी शुड, वी प्रोनाउन इज प्लूरल, इसलिए हैव. वी शुड हैव सम कॉफ़ी बिफोर वी लीव. We should have some coffee before we leave. Last one. The room is quite big. Room काफ़ी बड़ा है. Only one room is there, so it has 3 windows. यहाँ पे room के बारे में बात हो रही है. Only one room is there, that's why has. It has 3 windows. Windows के बारे में बात नहीं हो रही है.
रूम के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई इट हैज़. The room is quite big. It has 3 windows. Now here we have completed the 3 exercise. Now we'll move on to the D number exercise. उसमें क्या करना है? Complete these sentences with the correct form of verbs given in the bracket. तो according to the subject verb we have to put. She singular subject है तो verb आएगा singular walks. She walks to school every day. They plural subject is there, इसलिए plural verb come. Plural के साथ कभी s नहीं लगता verb में. They come to market twice a week. They come to the market twice a week. The cat singular subject है, so singular verb ड्रिंक में हम एस लगाएंगे तब वो बनेगा सिंगुलर ड्रिंक्स. द कैट ड्रिंक्स मिल्क. द कैट ड्रिंक्स मिल्क. शी सिंगुलर सब्जेक्ट के प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब वर्क्स. शी वर्क्स एट द सुपर मार्केट. WORKS वर्क्स. शी वर्क्स एट द सुपर मार्केट. The river dash into the ocean. एक ही रिवर है so flows सिंगुलर वर्ब लगेगा. The river flows FLOWS into the river. The river flows into the sea. I will always take plural verb, so I के साथ आएगा eat. I eat breakfast at 7 o'clock. आई और यू एक्सेप्शनल केस है, उसमें एस नहीं लगता, सिंगुलर होगा तो भी, इसलिए आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock. महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस लगेगा. महेश रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी. महेश रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी. स्टार्टिंग का सब्जेक्ट वी, प्रोनाउन वी प्लूरल है इसलिए स्विम. We swim in the pool on Sundays. We swim in the pool on Sundays. The plants plural है तो verb भी आएगा plural grow. The plants grow in good soil. The plants grow in good soil. The cat singular subject है तो verb भी आएगा singular sleeps. The cat sleeps in by the fireplace. The cat sleeps by the fireplace. So here our D exercise is also over. I hope all my students are writing with me. Now we will move on to the next exercise, that is E number. Change these sentences into negative sentence. सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है. माधव हैज़ अ पेन, तो क्या लगा के हम नेगेटिव कर सकते हैं? डज नॉट और डजंट. और प्लूरल होगा तो डू नॉट और पास्ट टेंस होगा तो डिड नॉट. ना हियर माधव हैज़ अ पेन, तो क्या आएगा? माधव डज नॉट हैव अ पेन. माधव डज नॉट हैव अ पेन. डज नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ में पता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे हैव लिखेंगे, हम हैज़ नहीं लिख सकते. माधव डज नॉट हैव अ पेन. हैज़ अ पेन लिखा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. माधव डज नॉट हैव अ पेन. नाउ वी रोड मीन्स सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. अ बुलॉक कार्ट इन द विलेज, तो जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे डिड नॉट लगा के इसका प्रेजेंट टेंस राइड लिखेंगे. वी डिड नॉट राइड RIDE. वी डिड नॉट राइड अ बुलॉक कार्ट इन द विलेज. वी डिड नॉट राइड अ बुलॉक कार्ट इन द विलेज.
डिड नॉट राइड, ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है, RIDE राइड। प्रेजेंट टेंस यहाँ पे लिखना है क्योंकि हमने डिड लगा दिया है इसलिए। वी डिड नॉट राइड अ बुलॉक कार्ट इन द विलेज। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स टर्न पेज नंबर 66 फॉर योर नेक्स्ट सेंटेंस। ही नोज हाउ टू स्विम, तो नोज है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगेगा। ही डज नॉट और नो, यहाँ पे हमने एस डस के साथ लगाया है इसलिए यहाँ पे एस निकल जाएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे नो। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, पीछे का सेंटेंस सेम रहेगा, यहाँ पे आपको चेंज करना है, डज नॉट नो, नोज नहीं लिखना है, नो लिखना है। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। दे प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा। दे प्ले बास्केटबॉल इन द आफ्टरनून, तो दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल इन द आफ्टरनून। दे डू नॉट प्ले, they do not play basketball in the afternoon. Next sentence. Maya reads a book before going to bed, तो उसके रोज की आदत है और सिंगुलर सब्जेक्ट माया है, रीड्स है तो क्या आएगा, डज नॉट। माया डज नॉट और यहाँ का एस हमने डस में लगा दिया है इसलिए यहाँ पे रहेगा रीड। माया डज नॉट रीड, माया डज नॉट रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। पीछे का सेंटेंस एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है, आगे ही चेंज आएगा। माया डज नॉट रीड, एस नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस 6th वन, रोहित नोज हाउ टू रीड अ कंपास, तो रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नोज लिखा है तो हम लिखेंगे डज नॉट, जिसमें एस आता है तो डज से कुछ नेगेटिव बनेगा। रोहित डज नॉट और यहाँ पे लिखेंगे नो, KNOW, एस नहीं लगाना है। रोहित डज नॉट नो, फिर ये सेम, हाउ टू रीड अ कंपास। रोहित does not know how to read a compass. 7th one, the hens run in the courtyard, तो hens प्लूरल है तो do not आएगा। the hens do not run in the courtyard. Again, the hens do not run in the courtyard, सेम जो सेंटेंस पीछे है वो हमको ऐड कर देना है। सी प्लेस द गिटार, प्रोनाउन है सिंगुलर में तो डज नॉट लगेगा। सी डज नॉट और यहाँ पे लिखेंगे प्ले, सी डज नॉट प्ले द गिटार। सी does not play the guitar. Now this exercise is over. Now our next exercise, change these sentences into questions using do और does, present tense में ही करना है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, they play football in the weekends, तो कैसे बनेगा, प्लूरल है they, सो do से क्वेश्चन बनेगा। Do they play football in the weekends? Do they play football in the weekends? He enjoys, he सिंगुलर है तो does से क्वेश्चन बनेगा और enjoys का s निकल जाएगा। Does he enjoy watching cricket? और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो at the end of the sentence question mark will come. Does he enjoy watching cricket? Question mark. They live in Bhopal. Bhopal
और यहाँ पे दे प्लूरल है इसलिए डू से क्वेश्चन बनेगा। स्टार्टिंग लेटर ऑलवेज कैपिटल। डू दे लिव इन भोपाल? क्वेश्चन मार्क। डू दे लिव इन भोपाल? क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं है। स्टार्टिंग क्वेश्चन बना रहे हैं तो डी कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सी लाइक्स टू ड्रॉ पोर्ट्रेट्स, तो दूसरे के तस्वीर बनाना उसे पसंद है। तो यहाँ पे सी सिंगुलर प्रोनाउन है, लाइक्स इसलिए डज शी लाइक, इसमें एस नहीं आएगा क्योंकि वो एस हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए डज शी लाइक टू ड्रॉ पोर्ट्रेट्स? क्वेश्चन मार्क। डज शी लाइक टू ड्रॉ पोर्ट्रेट्स? क्वेश्चन मार्क। डज शी लाइक लिखना है, एस आप नहीं लगाओगे क्योंकि वो एस हमने यहाँ पे लिखा है। डज स्टार्टिंग कैपिटल, डज शी लाइक फिर सेम टू ड्रॉ पोर्ट्रेट्स, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क। द बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट एवरी समर, तो बर्ड्स है प्लूरल तो डू से बनेगा क्वेश्चन। डू द बर्ड्स, और यहाँ पे बिल्ड का बिल्ड ही रहेगा, अ नेस्ट एवरी समर, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क बिकॉज वी आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। तो क्वेश्चन मार्क आपको भूलना नहीं है, नहीं लिखोगे देन योर स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। डू द बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट एवरी समर? क्वेश्चन मार्क। तो हियर पेज नंबर 66 वी हैव डन। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 67 की ओर। उसमें जो सेंटेंस है वो है नेहा एंड राज स्टडी इन द सेम स्कूल, तो यहाँ पे दो पर्सन है मीन्स प्लूरल, तो डू से क्वेश्चन बनेगा। डू नेहा एंड राज स्टडी इन द सेम स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डू नेहा एंड राज स्टडी इन द सेम स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। डू नेहा एंड राज study in the same school, plural is there, that's why. Next one, seventh one. Rutu likes to eat pineapples, तो here रुतु सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए, और वर्ब में एस है तो हम किससे बनाएंगे क्वेश्चन? एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, डस के साथ डज रुतु लाइक टू ईट पाइनएप्पल्स, और उसके बाद हमने क्वेश्चन बनाया तो लास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन डालना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन मार्क वी हैव टू पुट ओवर हियर। अगेन डज रितु लाइक, एस नहीं लगाना है, डज रितु लाइक टू ईट पाइनएप्पल्स, देन क्वेश्चन मार्क। ही सेल्स बलून्स एट द फेयर, तो ही सिंगुलर है, वर्ब में एस लगा है तो किससे क्वेश्चन बनेगा? डज से। डज ही सेल, फिर यहाँ पे जब हम क्वेश्चन बना रहे तो एस निकल जाएगा। डज ही सेल बलून्स एट द फेयर? क्वेश्चन मार्क। डज ही सेल बलून्स एट द फेयर? क्वेश्चन मार्क। तो दिस lesson is little bit long because all the rules of grammar is added here, subject, agreement, verb, very important lesson is there. So on regular basis the first part of the explanation part of this chapter, watch the video as much time as possible, and this exercise also on regular basis do in your rough notebook. प्रैक्टिस जितनी बार करोगे उतनी बार आपको ग्रामर समझ में आएगा, एक बार करने से ग्रामर इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑन रेगुलर बेसिस डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस ग्रामर एक्सरसाइज, सो ऑल द टॉपिक्स विल बी इजीली नोन टू यू। आप अच्छे से समझ पाओगे, आपको ग्रामर में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। प्रैक्टिस इज़ मस्ट, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ग्रामर कभी समझ में नहीं आएगा। So on regular basis watch the video,
do practice of the exercise in the rough notebook. Happy studying. Thank you everyone.